हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉलेज दुनिया स्टडी अब्रॉड। माय नेम इज स्वप्निल त्रिपाठी एंड आज फिर से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडिडेट के साथ स्टडी अब्रॉड कॉन्वर्सेशन करने आ गए हैं। हर नेम इज अपराजिता। शी टेल्स अस कि उनका कोई लास्ट नेम नहीं है एंड लास्ट नेम की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय जहाँ पे उन्होंने अपना मास्टर्स डिग्री परस्यू करा है वहाँ पे उनको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। सो वील हेड इनटू द वीडियो नाउ। हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन विद अस। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुआ है विद अपराजिता। You'll learn a lot of stuff about Chicago, about US, and about University of Illinois. So yes, let's begin with our video. But before we move ahead, if you have a study abroad dream, head to the first link in our description box. वहाँ पे जाके अपना बेसिक डिटेल्स भरो एंड आवर एक्सपर्ट काउंसलर्स विल रीच आउट टू यू इन जस्ट 48 to 72 आवर्स। हमारे दो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफरिंग्स भी है, वीजा गारंटी पैकेज एंड द ऑफर लेटर गारंटी पैकेज, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट एज वेल। नाउ लेट्स मूव अहेड इन आवर वीडियो। Hello everyone and welcome back to College Dunia Study Abroad. My name is Swapnil Tripathi and today we have a very special guest. Her name is Aparajita Gupta. इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो से मास्टर्स डिग्री परस्यू करी है इन सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। We'll have a detailed conversation with her and yes, let's jump right into it. Hi Aparajita, how are you doing? Hi Swapnil, I'm doing well. How are you? I'm good, I'm perfect. अपराजिता एक छोटा सा इंट्रो दे सकती हो अपना हमारे व्यूअर्स के लिए? Sure. So I am from Bokaro Seal City, Jharkhand, and I did my BTech from Guru Gobind Singh. It was a college in Bokaro Seal City, and my batch was the second batch. So it was a very new college. Then after that, I got an opportunity in Bangalore, and there I worked in Genpact and Oracle for about 3 years, and then I started my preparation for masters in US, and then I went to US in December 2020. So when it comes to my percentage in all my academic background, I got about, I don't remember exactly, but my percentage were in 70s. I was an average student. So in standard 12th, I got about 76%. My subjects were PCMB. And then in my college, again, my percentage was about 74-75% in BTech. And then in my master's, my GPA was 4 out of 4. That was unusual. I don't know how I got it, but I got it. That's okay. Perfect. That's a good GPA that you have right there, right? Yes. So, Acha, I'll jump right into my main questions now. My first question is, why University of Illinois, and why this program, MS in Supply Chain Management and Operations Management? So when you talk about supply chain, I didn't know that what supply chain is until I joined Genpact. So there I was a procurement specialist. So when did you join Genpact? In 2018, I guess. Achha. Yes, 17, 18. Yeah. So there I was a procurement specialist. I was a fresher, so this was a very new field for me. Then I came to know about supply chain and I really got interested into it. Uske baad I started preparing for masters. Then I actually researched a lot कि India में कितना scope है supply chain का और abroad में कितना scope है. So then I got to know कि इंडिया में ऐसे बहुत कम कोर्सेज हैं. So I already tried to get a course in India. कुछ ऐसी कंसल्टेंसीज हैं और कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो प्रोवाइड करते हैं ऐसे कोर्सेज फॉर मंथली कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, बट उसका ज्यादा वैल्यू नहीं है इंडिया में. तब रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि मास्टर्स इन सप्लाई चेन एक बहुत अच्छा कोर्स है यूएस में, कनाडा में, यूरोप में. और मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी थे वो सारे कोर्सेज में. यूरोप में एक मेरा फ्रेंड था, तो मैंने उससे बात किया और फिर मैंने पूरा जाना कि क्या है ये, कैसे है, और फिर मैंने चूज किया ये कोर्स कि मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसका आगे जाके बहुत स्कोप है. अच्छा, तुम्हारा फ्रेंड ऑलरेडी यूरोप में ये चीज कर रहा था, तो व्हाई डिड यू पिक अप यूएस? मतलब व्हाई नॉट गो टू यूरोप? दैट्स आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू कनाडा. मेरे दिमाग में था कि मेरे को कनाडा जाना है, वहाँ पे बहुत कूल कल्चर है. यूएस में बहुत स्ट्रिक्ट कल्चर है, कनाडा जाना है. बट मैंने रिसर्च नहीं किया ज्यादा. मैंने सोचा जीआरई तो देना ही होता है, जीआरई दे देते हैं, टॉफल दे देते हैं, ये सबके मुंह से सुनाते हैं. What was your GRE score and TOEFL score? GRE, then also I was an average student like I said. तो GRE score भी मेरा बहुत कम था. It was 292. 300 के ऊपर माना जाता था. Score is really good. 292 was not that good score, but I got demotivated after the results. But सब लोगों ने बोला कि आपको SOP और LOR बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए.
कोर्स स्कोर उतना मैटर नहीं करता है। आप थोड़ा कम स्कोर भी लाओगे बट आपका एसओपी स्ट्रांग है, एलओआर स्ट्रांग है, तो यू कैन गेट इनटू दैट कॉलेज। अच्छा तो आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू कनाडा। मैंने रिसर्च नहीं किया, मैंने जीआरई दे दिया, टोफल दे दिया। थोड़े दिन बाद मेरे को पता चला कि आईएलटीएस देना होता है कनाडा के लिए, तो फिर मैंने आईएलटीएस का एग्जाम का फॉर्म भरा। उसके बाद जब मैंने सारा एग्जाम दे दिया, मैं आई स्टार्टेड डूइंग माय रिसर्च कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सा कोर्स है। मुझे पता चला कि कनाडा में ज्यादा सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, स्मॉल प्रोग्राम्स है, 9 मंथ्स का है, 11 मंथ्स का है। और मैंने सोचा कि जब अब्रॉड जा ही रहे हैं तो एटलीस्ट 1.5-2 साल तो रह के आएंगे, ये 9 महीने में तो एडजस्ट करने में ही टाइम निकल जाएगा। तो फिर मैंने यूरोप में एक कॉलेज में भरा था फॉर्म, क्योंकि उसमें एक ही कॉलेज सबसे अच्छा था जहाँ मेरा फ्रेंड था। दैट कौन सा वाज college? ग्रैंडफील्ड यूनिवर्सिटी। दैट इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन यूरोप, जो सप्लाई चेन के कोर्स के लिए टॉप यूनिवर्सिटी है। एंड लकीली आई गॉट इनटू दैट, बट वो एडमिट बहुत टाइम बाद आया था। फिर अच्छा। यूएस में मैंने 5 कॉलेजेस में भरा था फॉर्म। मैंने यूआईसी इसलिए चूज किया बिकॉज यूआईसी वाज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी का फीस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कम होता है। दैट इज ऑल्सो अ लॉट फॉर एन इंडियन, यस। बट बट मैंने ये जो UIC 5 कॉलेजेस थे जहाँ जहाँ तुमने एप्लीकेशन डाली, कौन कौन से कॉलेजेस थे ये, एंड कहाँ से एक्सेप्ट आए, कहाँ से रिजेक्ट्स आए? मुझे लगता है कि मैंने आरआईटी में डाला था, नॉर्थईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, फिर यूआईसी, ग्रैंडफील्ड एक मैंने यूरोप का डाला था, और एक तो कुछ मैंने ऐसे, जब आपको कंसल्टेंसीज कांटेक्ट करती है और आपके पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज आते हैं जो आपके लिस्ट में नहीं है बट फिर भी आपको लगता है आपका चांस है वहाँ, तो आप वहाँ भी फॉर्म भर देते हो। तो मैंने वहाँ भी भर दिया था, विच वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये Okay. मैंने सारा यॉकेट से देखा था, मुझे अच्छा। कुछ पता नहीं था। मैंने सारा यॉकेट में देखा कि कहाँ पे ज्यादा एक्सेप्टेंस रेट है या कहाँ ज्यादा कम जीआरई स्कोर में हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम तो खराब गया था, स्कोर्स तो पता था सब तीनों के खराब ही आएंगे, तो कम स्कोर में जहाँ हो जाएगा वहां के लिए मैंने भरा। अच्छा, ओके। एंड इनमें से एक्सेप्ट्स कहाँ से आए और रिजेक्ट्स कहाँ से आए? सारे से एक्सेप्ट आ गया था, बस आरआईटी से एक्सेप्ट नहीं आया था। उसका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा है, तो अगर आता भी तो आई कुडंट अफोर्ड दैट कॉलेज, तो मैं छोड़ ही देती। तो फिर व्हाई डिड यू चूज यूआईसी, यूनिवर्सिटी ऑफ क्योंकि पूरे लिस्ट में सिर्फ North यूआईसी Eastern- बचा। द थिंग वाज कि पूरे लिस्ट में यूआईसी एक पब्लिक इंस्टीट्यूट था, एंड शिकागो इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टे। तो मेरे कुछ जान पहचान वाले थे ऑलरेडी शिकागो में जो पढ़ के वापस आ चुके थे, तो उन्होंने बोला शिकागो बहुत अच्छा जगह है, वहां चल जाओ। अच्छा। तो फिर आई थॉट कि फीस भी कम है, जगह भी अच्छा है, so I should go to this place. And the चलो, university बढ़िया। is quite big. It's a huge university. It has many courses. We'll come to the programs and the university a bit later, but okay, let's jump into your admission process. तुमने तैयारी करना कब से स्टार्ट करा? When did you thought about कि ठीक है मेरे को स्टडी अब्रॉड करना है, and preparation कब से स्टार्ट करी? When I was in Genpact, तब मैंने सोचा कि इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तब मैंने थोड़ा रिसर्च किया और 2018 एंड से मैंने तैयारी शुरू की थी। 2019 तक मैंने सोच लिया कि मुझे यही करना है, तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, बट मैंने पूरी तैयारी खुद से की है, मैंने कोई कोचिंग And ज्वाइन नहीं किया। which intake did you go in? किस intake में गई थी? सो मुझे जाना था फॉल 2020 में, बट उस Okay. समय कोविड आ गया था, हाँ। तो फिर मैं गई स्प्रिंग 2021 में। एडमिट आ चुका था ऑलरेडी फॉल 2020 में। फिर सारी यूनिवर्सिटीज एडमिट आगे नहीं कर रहे थे, बट यूआईसी ने एडमिट आगे कर दिया था कि आप स्प्रिंग में आओ। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज उस समय बुला भी रही थी, अगर आपको वीजा मिल रहा है तो आप आओ, बट इतना ज्यादा कोविड था उस समय, देयर वाज नो यूज ऑफ गोइंग टू द यूएस। तो मैं स्प्रिंग 2021 में गई थी। अच्छा। और तो लेट्स से अगर एक कैंडिडेट का एडमिट आ जाता है तो फिर वो एडमिट कब तक के लिए वैलिड रहेगा? इज देयर समथिंग लाइक दैट? yes, every university has a different deadline, but I think it was valid for about a month कि 1 महीने में आपको एक्सेप्ट कर लेना है, या जो भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है एडमिट। एंड देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट यूआईसी कि यूआईसी ग्लोबल एक है और एक यूआईसी डायरेक्ट है। तो Okay. ये डिफरेंस मुझे पहले नहीं पता था। जब मैं यूएस चली गई तब मुझे पता चला कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। क्या है और ये difference? हमें भी पता। ये डिफरेंस ये है कि सो यूआईसी में जब आप अप्लाई करोगे, तो मैंने यॉकेट से अप्लाई किया था। यॉकेट के थ्रू अप्लाई करके उसमें फ्री चल रहा था, देयर इज ऑलवेज अ सेल गोइंग ऑन कि ये यूनिवर्सिटीज का फ्री है, देयर इज नो एप्लीकेशन फीस, आप अप्लाई कर दो। तो मैंने अप्लाई कर दिया। फिर वहां से आपको कोई कांटेक्ट करेगा कि आपने यूएससी में अप्लाई किया था, तो आपको ये फॉर्म देना है, ये करना है, आपका एडमिट हो जाएगा। आप उसको सारा डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे, एंड इट्स ऑलवेज रिटन कि वो यूआईसी से है। सो यूआईसी
ग्लोबल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूआईसी, बट यूआईसी ग्लोबल कुछ ऐसे कोर्सेज को टारगेट करता है जिसमें उनके स्टूडेंट्स ज्यादा, उनको अवेयरनेस नहीं है कि सप्लाई चेन भी एक कोर्स है, या फिर अर्बन प्लानिंग, मेरी एक फ्रेंड थी अर्बन प्लानिंग में, ये भी कोई कोर्स है। तो वो सबको टारगेट करके उनको इजी लाइक एप्लीकेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यू थिंक दे आर फ्रॉम यूआईसी, बट यूआईसी ग्लोबल इज अ काइंड ऑफ नो अ डिफरेंट नो सबसेट ऑफ यूआईसी। सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि आप चले जाओगे, सेम क्लास में पढ़ोगे, ऑलमोस्ट आपका फीस भी सेम होगा, बट अगर आपको असिस्टेंटशिप मिल गई जीएटीए या कुछ भी, उसमें आपका ट्यूशन वेवर नहीं होगा, और बाकी लोगों का होगा जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ यूआईसी से गए हैं वेबसाइट से अप्लाई करके, विच इज यूआईसी डायरेक्ट। राइट राइट। अच्छा, तो मतलब जीएटीए अगर मिल रहा है तो ट्यूशन फी वेवर हो रहा है? यस, अगर आपको जीए या टीए मिलता है यूनिवर्सिटीज में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में सेम प्रोसीजर है, तो आपका एक अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाता है, जो मेजर ट्यूशन फीस है। फिर आपका इंश्योरेंस, डिफरेंशियल्स, ये सारा अमाउंट लगता है। तो अच्छा। फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का फीस वाज अबाउट $20,000। तो ओके। आप अगर आपको जीए या टीए मिल गया है तो आपको सिर्फ $5,000 पे करना है, अच्छा, आपका $15,000 वेव ऑफ हो जाएगा, रेस्ट जो हैज बीन डिडक्टेड। deducted. You don't have to pay that at all, and then you are getting paid for what you're doing. आपको राइट। आपको एक what do you call it, सैलरी, एक स्टाइपेंड मिलेगा, Of course, right? there's extra earning as well. Plus, you're getting Yes, the benefit of yes. tuition So deduction. But this did 20,000 not से happen. 5,000, it's a lot, But ये which I तुम्हारे did लिए not get. I did not get. All just of because. I went through UIC Global. Okay. Okay. So there's ठीक है। only one thing which I want to say. It was written on the document itself. जब आप सारे डॉक्यूमेंट साइन करते हो, क्या होता है कि you are so excited to go to US, you get a lot of documents from the universities, and you do not read each and every line. तो आप साइन कर देते हो कि ये तो भाई एडमिट का डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ब्ला ब्ला, बट देयर वाज वन लाइन जो एक नंबर पे लिखा हुआ था कहीं जाके 14th या 15th पॉइंट पे, कि अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो तो आपको कोई भी असिस्टेंटशिप में ट्यूशन वेवर नहीं मिलेगा। उस समय किसी को ये सारी चीजें समझ नहीं आती तो ये कर देते हैं। बाद में व्हेन आई आई सेड कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरे सारे दोस्तों को तो मिल रहा है, देन दे टोल्ड मी कि ये पॉइंट पढ़ो, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा नहीं, साइन दिस डॉक्यूमेंट। Oh, right. So this is a very important point for our viewers, I guess. कि if let's say you are applying for a study abroad university, if you are gonna pursue a study abroad deal, so just read the documents very carefully. मतलब ऐसी ऐसी काफी चीजें होती हैं जो hidden होती हैं somehow, या mentioned होती हैं but we it's a human error, ignore हो जाता है। तो documents पढ़ने चाहिए, right? ठीक है, okay, all right. तो अपराजिता, चलो अभी बात करते हैं कि now you got acceptance from major universities जहाँ पे तुमने अप्लाई करा। कौन सी यूनिवर्सिटी से सबसे पहला एक्सेप्ट आया तुम्हें, एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन फॉर दिस? मुझे पहला रिजेक्ट आया था। आई ऑलरेडी गॉट डीमोटिवेटेड कि मेरे से नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा जीआरई स्कोर बहुत कम था। फर्स्ट रिजेक्ट आया था रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से, और फिर मैंने सोचा अब तो ये नहीं होगा, जॉब पे ही फोकस करते हैं। मैं काम तभी भी कर रही थी, आई वाज इन ओरेकल, आई वाज वर्किंग ऑलरेडी, सो आई थॉट ये नहीं होने वाला। फिर आई थिंक बाकी सारे एक्सेप्ट जो 2-3 यूनिवर्सिटीज था, क्रैनफील्ड का भी आ गया। फिर मैंने यूरोप में देखा कि 1 साल का कोर्स है वो, सेम थॉट कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बट आप यूरोप जाओगे 1 साल में वापस भी आना होगा। एंड द सेकेंड थिंग, यूरोप में उतनी अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं दिखी सप्लाई चेन को लेकर के। मेरे दोस्तों ने बोला कि आपको अपॉर्चुनिटीज यूएस में ज्यादा मिलेगी, यूरोप में बहुत स्ट्रगल है, इस फील्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। Why is that? Why do you think it is? My friends have told me, so my friends were already there in Europe, so they told me कोर्स बहुत अच्छा है, कॉलेज बहुत अच्छा है, बट स्ट्रगल बहुत ज्यादा है सप्लाई चेन में अगर आप यूरोप जा रहे हो। अगर आपको यूएस में मिल रहा है तो यूएस क्यों नहीं जा रहे हो? एम्प्लॉयबिलिटी मिलने का स्ट्रगल है, या फिर जब काम करने लगो तो फिर वो वर्क कल्चर? जॉब मिलने का स्ट्रगल है, आपको जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल है यूरोप में, सप्लाई चेन में स्पेशली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो। तो यूआईसी से मेरा लास्ट एडमिट आया था, लास्ट। देन आई कंपेयर्ड द फी स्ट्रक्चर एंड आई रियलाइज पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी चल जाते हैं, फीस भी कम है। राइट, दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ पुटिंग इट, आई गेस। नाउ टॉकिंग अबाउट योर एडमिशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या थे तुम्हारे को? इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर 10th मार्कशीट, टीसी 12th का सब कुछ, then BTech का mark sheet, transcript. Okay, I faced a lot of issue in getting my transcript.
दैट्स द Why? टफेस्ट जॉब। अगर आपने कोई छोटे कॉलेज से, छोटे जगह से आपने अगर किया है कोई कोर्स, जैसे मैंने बोकारो से किया, सेकेंड बैच था मेरा, तो इट वाज अ न्यू कॉलेज। उसकी यूनिवर्सिटी थी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। उनको ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेट ही नहीं पता है, क्योंकि इस जगह से शायद ज्यादा लोग यूएस जाते नहीं है। दैट्स व्हाट आई कंक्लूडेड। Right, तो right. तो आपको किसी फ्रेंड का ट्रांसक्रिप्ट लेके उनको दिखाना होगा कि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्ट जो आपका यूएस में एक्सेप्ट हो, क्योंकि आप बार बार भेजोगे, बार बार रिजेक्शन आएगा, बार बार आप भेजोगे, और आपको पैसे भी लगते हैं ट्रांसक्रिप्ट निकालने के लिए। तो हाँ. आपको निकालना होता है 10 ट्रांसक्रिप्ट, जितना भी आपने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया उतना। मैंने 10 निकाल लिया था ट्रांसक्रिप्ट। मैंने सोचा बाद में भी कहीं शायद अप्लाई करूंगी तो वो ट्रांसक्रिप्ट निकालने के बाद आपको हर यूनिवर्सिटी में भेजना होता है अपना डॉक्यूमेंट। अच्छा, यूआईसी में एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन फी वगैरह की? एप्लीकेशन फी फ्री था मेरे लिए, क्योंकि मैंने यॉकेट से अप्लाई किया था। अच्छा, ओके। तो ये सारे पांचों कॉलेज के लिए था या फिर क्या scenario? बाकी कॉलेजेस के लिए आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेम्बर एट ऑल मैंने Okay. कितना दिया था, आई डोंट रिमेम्बर। कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। देन आफ्टर आफ्टर ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह उसके बाद फिर और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बचे एडमिशन दो प्रोसेस मेजर डॉक्यूमेंट और है, जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी और एलओआर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो आपको 2 लेटर ऑफ कितने रिकमेंडेशन कितने चाहिए लेट? होता है। दो चाहिए होता है, मेनली 2 ही देते हैं सब, 2 या 3, क्योंकि आप जो फॉर्म भरते हो जब यूनिवर्सिटी के पेज पे, वहां पे 2 या 3 अटैचमेंट्स रहते हैं एज फार एज आई रिमेम्बर। तो एक जो लोग लेते हैं वो एक कॉलेज से ले लेते हैं जहाँ से आपने पढ़ाई की है, आपके कोई प्रोफेसर का, कि प्रोफेसर विल राइट सर्टेन थिंग्स कि कैसा था स्टूडेंट, ये इफ द स्टूडेंट इज डेडिकेटेड टू वर्क एंड ऑल दो स्टफ, लाइक व्हाट आर द एक्स्ट्रा स्किल्स व्हिच विल हेल्प हर और हिम ये कोर्स करने में, एंड व्हाई शुड द यूनिवर्सिटी चूज दिस स्टूडेंट। दिस इज काइंड ऑफ वेरिफिकेशन जो यूनिवर्सिटीज करती है कि आप इस कॉलेज से पढ़े हो, तो आपके प्रोफेसर ऑब्वियसली आपके बारे में कुछ तो अच्छा बोल सकते हैं। सेकंड आप ले सकते हो ऑफिस से, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। तो मैंने लिया था ऑरेकल से, अपनी मैनेजर से। तो शी विल राइट हाउ शी इज एट वर्क एंड ऑल दो स्टफ, शी विल राइट दैट। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे रहा है वो हमेशा एक ईमेल आईडी और अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, सो दैट द यूनिवर्सिटी कैन कॉन्टैक्ट दैट पर्सन। Yes, yes, Yes. yes. Okay. And what about the SOP? Do you somehow remember कि तुमने SOP में लिखा क्या था? And can you maybe state it out for the viewers? Yes, I think you have to make a lot of stories. आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर होना बहुत जरूरी है अच्छा एसओपी लिखने के लिए, क्योंकि अगर आप जैसे इंट्रोडक्शन देते हो वो आपने अगर लिख दिया एक पेज में, तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा। आपको ऐसा बताना है कि ये जो कोर्स है जो आप करना चाहते हो, ये आपका बचपन से सपना था करने के लिए, और यू हैव टू रिलेट ऑल योर फर्स्ट थिंग जो होता है कि आपको अपना बैचलर्स डिग्री को मास्टर्स डिग्री से रिलेट करना है कैसे भी। मेरा बैचलर्स था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मेरा मास्टर्स होने वाला था सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जो कोर्स इंडिया में है ही नहीं। तो मैं रिलेट कैसे करूं? मैंने मुझे याद है कि मैंने लिखा था, इट वाज अ काइंड ऑफ ट्रू, थोड़ा सा तो सच था उसमें, पूरा नहीं बोल सकते, थोड़ा सच था कि आप बीटेक में मैंने एक इंटर्नशिप किया था 1 महीने के लिए एक स्टील प्लांट में, विच इज बोकारो स्टील प्लांट। तो मैंने लिखा था कि जब मैं पहली बार स्टील प्लांट गई थी तो आई वाज रियली फैसिनेटेड, इतना सारा ट्रक्स निकल रहा है, जा रहा है, ये पूरा मैनेजमेंट कैसे होता है, हाउ विल समवन मैनेज इतना ह्यूज प्लांट को जहाँ से इतना इन एंड आउट एक्शन हो रहा है। तो आई वाज रियली फैसिनेटेड कि ये कैसे होगा। तब मुझे सप्लाई चेन टर्म नहीं पता था, बट व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे स्टोरी क्या लिखनी है, तो मैंने वहीं से शुरू किया कि मैंने बीटेक में इंटर्नशिप किया था, वहां से मुझे लगा कि हाउ दिस इज मैनेज। फिर मैंने प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट का जॉब किया, तो मुझे सप्लाई चेन का पता चला क्या क्या एक्टिविटीज होती है। देन आई गॉट इंटरेस्टेड, और फिर मैंने कुछ पॉइंट्स दिया कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है और आई एम अ कथक डांसर, तो मैं एक्सप्रेसिव हूँ। यू हैव टू रिलेट एवरीथिंग एंड देन मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट सो दैट यू गेट सिलेक्टेड. All right. So, अच्छा, because you mentioned that you are a Kathak dancer as well, तो University of Illinois सिर्फ academics को favor देती है या फिर it's the whole profile that actually does the wonder? When you talk about especially for dance, तो Indian classical dance का कुछ वैसा मास्टर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि उनके पास टाइम कम रहता है, बट वहाँ पे दिवाली, होली, दुर्गा पूजा सब कुछ सेलिब्रेट होता है, जहाँ पे बैचलर्स के जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं दे परफॉर्म ऑल द इंडियन डांसेस, वो सब कुछ करते हैं, वो सारा फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं और सारे इंडियन कल्चर को दिखाते हैं। तो यू विल हैव योर ओन फेस्टिवल्स देयर. अच्छा, ओके, ठीक है.
नाउ कमिंग टू द वीजा प्रोसेस तुम्हारा कैसा था एंड कितना टाइम लगा था उसमें? ओ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगेन, क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था, तो किसी को भी वीजा नहीं मिल रहा था। राइट। एंड आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कैसे क्या करना है। कुछ लोगों का एडमिट ऑलरेडी आ चुका था, जो लोग महाराष्ट्र में थे, जो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू लोग मिल रहे थे कि अच्छा। इसने ये अप्लाई किया है इस यूनिवर्सिटी में। अचानक से एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने मुझे ऐड कर दिया, फिर मैंने कुछ लोगों को पिंग करके पूछा वीजा के लिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं, और अप्लाई कर रहे हैं तो फिर कैसे वो मिलेगा स्लॉट। कोविड के टाइम पे इतने कम स्लॉट्स थे कि स्लॉट आता है 10 सेकेंड्स में खत्म हो जा रहा था, 10 सेकेंड। तो आई विल टेल यू द स्टोरी। समवन टोल्ड मी कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, वो ज्वाइन करो। ओके। मैं कौन सा? टेलीग्राम इंस्टॉल किया, पहले मेरे पास टेलीग्राम था भी नहीं। मैंने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन किया। किसी ने मुझे नाम बताया था, वीजा स्लॉट या ऐसे करके कुछ ग्रुप्स थे, वो ज्वाइन करो आप। वो ज्वाइन करने के बाद आपको और ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में और सब लोग पोस्ट करते हैं, उससे आप सारे ग्रुप ज्वाइन करो। आई वॉज देयर इन 4 to 5 ग्रुप्स। वो ग्रुप्स मेनली ना स्टेट वाइज डिवाइडेड थे, क्योंकि अच्छा। व्हेन यू सी महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बच्चे मास्टर्स करने जाते हैं। तब राइट। मेरे यूनिवर्सिटी में मेरे मास्टर्स में जितने मेरे फ्रेंड्स थे, आई थिंक 95% लोग महाराष्ट्र से थे। आई वॉज लाइक, एम आई द ओनली वन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? आई गॉट वन मोर फ्रेंड, दैट्स इट। तो वो ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद आपको जैसे ही वीजा का स्लॉट खुलेगा, आपको लिखना है गो। यू कांट राइट एनीथिंग एल्स, यू जस्ट हैव टू राइट GO गो। एंड देन उसके बाद आपको एक अल्फाबेट लिखना है कि कौन सा वीजा का स्टेट का खुला है। लाइक देयर आर 5 सेंटर्स आई गेस, तो कैलकाटा का स्लॉट खुला है या मुंबई का स्लॉट खुला है, यू हैव टू राइट C और M। इफ यू राइट एनीथिंग एल्स, ग्रुप का एडमिन आपको ग्रुप से निकाल देगा। यू कांट डू चैटिंग कि स्लॉट बंद हो गया क्या, या कितने सीट्स थे। यू कांट डू ऑल दिस थिंग्स। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। और इसके लिए लोग 24 आवर्स सो नहीं रहे थे उस समय। दे वर नॉट स्लीपिंग, क्योंकि स्लॉट आता था सुबह 4 बजे, कभी आ रहा है शाम के 6 बजे। लोग अपने लैपटॉप में 24/7 थे। टेलीग्राम ऐसे खुला रहता था सबके फोन पे दिन भर, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। मैं उस समय जॉब कर रही थी, और रात में नींद ही नहीं आती थी किसी को कि कहीं स्लॉट खुल गया तो। जैसे ही आपको ग्रुप में गो लिखा हुआ मिलेगा, आपको लॉग इन करना है पोर्टल पे, और आपको जल्दी से स्लॉट बुक करना है। मेरे साथ ऐसे 2-3 बार मिस हो गया। एक बार मैंने बुक कर दिया स्लॉट, और वो अगले साल का बुक हुआ। इतने हड़बड़ी में किया कि उसका डेट्स अलग था। एंड द वर्स्ट थिंग इज, वंस यू बुक अ स्लॉट, यू कांट रीबुक इट। आपके पास ऑलरेडी डेट्स हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, या तो आप इमरजेंसी वीजा के लिए अप्लाई कर दो, जो कोविड के टाइम पे कुछ काम नहीं कर रहा था, और या तो फिर आप दूसरे डेट के साथ उसको रिप्लेस कर दो। मुझे मिल गया था एक स्लॉट एकदम कुछ ही दिन पहले। मैंने December 4 का मुझे स्लॉट मिला था 2020, और मुझे दोनों स्लॉट दिल्ली में मिला था। 2 देना होता है आपको, बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू। दोनों का स्लॉट मुझे दिल्ली में मिला था, 2-2 दिन के गैप में। कुछ लोगों के लिए स्लॉट्स ऐसा था, आपका पहला दिन बायोमेट्रिक्स का स्लॉट है मुंबई में, और अगले दिन आपका इंटरव्यू का स्लॉट है दिल्ली में या कैलकाटा में। दे हैड टू ट्रैवल 2 दिन के अंदर। Right. And was this because of the COVID scenario? या Yes, आज it was अभी भी because ये of सब? COVID. It was because of COVID. Okay. All right. So that's a very interesting story that you just had there for the visa process. I guess अगर so I was planning to play a rapid fire question. चलो ठीक है, उसके बारे में बाद में आते हैं. We'll of course play that game. I want to add something because I think this is very important for your viewers to know. I Yes, sir. don't have a last name. मेरा Okay. ऑफिशियल नाम सिर्फ अपराजिता है, और आपके पास सिर्फ एक नाम है, तो आप यूएस में सरवाइव करने के लिए हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। दिस वाज अ स्टोरी जो सब लोग जब यूएस में घर आते थे तो मैं यही सुनाती थी। So isn't your name Aparajita Gupta? I've been calling No, you. my official name is Aprajita. All my email IDs they have Gupta because it's my family surname. But my official name is Aprajita. And आपके पास अगर सिंगल नेम है, आपके यूएस के कोई भी फॉर्म में आप एक स्पेस खाली नहीं छोड़ सकते। You have to fill something. You have to have a first name and a last name. तो अगर आपके पास एक ही नाम है जैसे मेरा है, तो either you have to fill LNU in your last name slot, or you have to fill FNU in your first name slot. ये प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं हुआ था मेरे पूरे बैच में। I had to struggle a lot for my degree name as well.
इसका सोल्यूशन कैसे मिला? ये मुझे यूआईसी ग्लोबल वाले लोगों ने बताया कि जब मैं फॉर्म भर रही थी, कॉलेज से कितने सारे फॉर्म आते हैं, तो फॉर्म भर रही थी, मैंने बोला इंडिया में तो अगर आप एक फुल स्टॉप भी डाल दो लास्ट नेम में तो सिस्टम विल एक्सेप्ट इट, वी डोंट हैव टू हैव अ लास्ट नेम इन इंडिया। तो मैंने बोला क्या लिखना है, तो ही सेड राइट LNU इन कैप्स। I wrote LNU and then I asked. So he said it's last name unidentified. Okay. So my Okay. name was Aprajita LNU. अच्छा, okay, okay. So now is that again, was there degree में भी यही नाम है क्या अभी भी? yes, now again, the worst part. I went to give my biometrics. वहां मैं लाइन में खड़ी थी 1 घंटे से। एक तो इतना मुश्किल से सबको स्लॉट मिला था, और सबका एक टाइम लिमिट है, अगर आप उसके बाद आओगे तो शायद आपका नहीं होगा बायोमेट्रिक। द लेडी हु वाज स्टैंडिंग, मेरा टर्न आ गया बायोमेट्रिक देने का। शी रेड माय फॉर्म एंड शी टोल्ड मी कि LNU नहीं लिख सकते आप, आपको लिखना है FNU। अगर आपके पास एक नाम है तो वो आपका लास्ट नाम है यूएस के हिसाब से, पासपोर्ट लेने के लिए, वीजा लेने के लिए। ओके ओके। नाउ अब क्या करें, अब तो पूरा फॉर्म प्रिंट हो चुका है, सब निकल चुका है, अब मेरा स्लॉट का टाइम आ गया है। तो दिल्ली में इट्स अ ह्यूज बिजनेस, जहाँ भी आपका वीजा सेंटर होता है उसके बगल में 3-4 कैफे होते हैं जो आपसे 500 रुपए 1000 रुपए लेते हैं, आपका फॉर्म वापस से भर देते हैं। अब मैंने अपना फॉर्म खुद ही भरा था तो मुझे पता था कहाँ क्या चेंज करना है। मैंने लॉग इन किया वापस से, मैंने LNU हटा के अपराजिता को लास्ट नेम में लिखा और फिर FNU लिखा, विच इज फर्स्ट नेम अनआइडेंटिफाइड। So basically your name is now Fun Aparajita, right? It was Fanu. It was Fanu Aparajita. Right. Okay. All yes, right. and then पूरे कोर्स में मेरा हर जगह नाम FNU अपराजिता ही लिखा जा रहा था। People were confused कि फनु किसी का नाम कैसे हो सकता है। एंड देन डिग्री के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है, उसमें आप नाम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपका कोर्स में आपका नाम रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटी के साथ। बट फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, बहुत लोगों को ईमेल सेंड करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि दिस इज व्हाट हैपेंड। आप मेरे वीजा में FNU अपराजिता है और मुझे डिग्री में सिर्फ अपराजिता चाहिए था। तो फिर मैंने उसके लिए बहुत जगह ईमेल सेंड किया, उनको समझाया। They told me we can't change your name, sorry, this is your registered name. फिर काफी समझाने के बाद मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिखाया कि मेरे पासपोर्ट में सिर्फ अपराजिता है क्योंकि इंडियन पासपोर्ट है, बट मेरे वीजा में FNU अपराजिता है। ये करने के बाद मेरी डिग्री में सिर्फ अपराजिता आया है फाइनली। चलो, thankfully that happened. ठीक है। Okay. That you have a lot of interesting stories if I talk about मतलब study abroad में तो यूनिवर्सिटी वगैरह तो चलो चले गए, यूएस का एक्सपीरियंस ले लिया, बट पीछे इंडिया में इतना कुछ हो चुका है तुम्हारे साथ। it's pretty interesting. Now let's come to University of Illinois. कैसी है ये यूनिवर्सिटी एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब यूनिवर्सिटी के अंदर घुसे? टेल मी अबाउट दैट मोमेंट। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर वाज ऑनलाइन, ये वहां जाने के बाद पता चला। ओके you can't go to classes अभी क्योंकि कोविड चल रहा है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन करना पड़ेगा। और इट वाज वेरी सैड फॉर अस बिकॉज वी पेड अ ह्यूज अमाउंट, और फीस में कोई डिडक्शन नहीं था, फीस पूरा भरना था। ऐसा बताया गया था कि हाइब्रिड कोर्स है, कि हाफ ऑनलाइन हाफ ऑफलाइन, बट एज फार एज आई रिमेम्बर फर्स्ट सेमेस्टर में एक भी क्लासेस नहीं हुए थे इन पर्सन, सारे ऑनलाइन ही थे। तो यूनिवर्सिटीज हम जाते थे देखने के लिए, लाइब्रेरी ये वो। मैं यूनिवर्सिटी के बहुत पास रहती थी तो आई यूज्ड टू गो। तो ऑन कैंपस अकोमोडेशन नहीं लिया था? नहीं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स जनरली हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, वहाँ ज्यादा बैचलर्स के स्टूडेंट रहते हैं, और आई थिंक उसका फीस बहुत ज्यादा होता है, अकोमोडेशन फीस। वी डोंट इवन नो हाउ मच इट इज, बट बहुत ज्यादा होता है। आप रेंट देते हो, आप शेयरिंग में रहते हो, तो आपको काफी कम, you have to spend a little. तो चलो कुछ बताओ अपने ऑफ कैंपस अकोमोडेशन के बारे में, बताओ कहाँ पे था, यूनिवर्सिटी से कितना दूर था, एंड हाउ मच वाज द रेंट दैट you were burning that time? So it was just 2-3 lanes away from the university, like वो पूरा कैंपस UIC का ही था जहाँ मैं रहती थी। और I think for an individual room, मेरे घर का रेंट was about $500 for individual room, so there were 3 rooms, so it was $1,500 ये रेंट था। और फिर आपको बाकी एक्सपेंसेस देने होते हैं, आपका व्हाट यू कॉल इट, योर हीट एंड AC बिल, वाटर बिल इज ऑलवेज इंक्लूडेड। यस, इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज का। यस ओके। And it was a very fancy house, the ones we got, it was a very fancy house,
Okay. क्योंकि उस समय कोविड था तो कोई ले नहीं रहा था, तो हमें वो कम प्राइस में मिल गया। बट हमें फिर वो 6 मंथ्स के बाद छोड़ना पड़ा, एक सेमेस्टर के बाद, क्योंकि ओनर ने उसका रेंट डबल कर दिया था, क्योंकि लोग आने शुरू हो गए थे इंडिया से और बाकी जगह से, तो उसका रेंट बढ़ गया था। तो ठीक है, $1,500 you were paying monthly for your off-campus accommodation For the whole house, yeah. So there were, for the whole house. yeah, for Okay. one room I was paying, one individual room I was paying about $500. $500. Okay, all right. Apart from $500, और क्या क्या खर्चे हैं बाहर रहने? आई थिंक सबसे मेजर खर्चा है, क्योंकि शिकागो में स्नो होते रहता है हमेशा। इट्स अ वेरी कोल्ड सिटी, इट्स कॉल्ड अ विंडी सिटी, तो वहाँ Right. बहुत ठंड रहती है। तो आपका हीटर का जो बिल है, हीट बिल, वो बहुत ज्यादा आता है। तो एज फार एज आई रिमेम्बर, मैक्सिमम बिल जो इंडिविजुअली किसी को भरना पड़ता है वो $100 है पर पर्सन। अच्छा अच्छा। सो इट बिकम $600 पर मंथ हो गया आपका, 500 रेंट, 100 आपका ये बिल, और बाकी खाने और ये सब चीज का आई थिंक $50-60 इफ यू आर कुकिंग। इफ यू आर नॉट कुकिंग एंड ईटिंग आउटसाइड एवरी डे, देन आई डोंट नो। बट ऑनेस्टली मैंने 6 महीने तक यूएस में बाहर कभी कुछ खाया ही नहीं। मुझे लगता है मैंने 6-7 महीने बाहर का खाना ही नहीं खाया। Why? क्योंकि एक तो मुझे उतना जंक पसंद नहीं है, लाइक बर्गर, पिज्जा एंड स्टफ। मैं इंडिया से लेके गई थी पाव भाजी का पैकेट और हल्दीराम का सारा रेडी टू ईट स्टफ। मेरा एक बैग में सिर्फ खाने का सामान था, कुकर, कढ़ाई, खाने का सामान, ऑल द स्टफ। तो वहां पे अच्छा जाके अच्छा, मुझे ये बताओ, इंडियंस हम सब ना कुकर कढ़ाई वगैरह पैक करके लेके जाते हैं, जरूरत है यहाँ से पैक करके ले जाने की कि वहां बहुत जरूरत है कुकर ले जाने की। क्यों वहां पे नहीं ट्रस्ट मिलता में, है? वहां पे आपको आसपास कहीं नहीं मिलेगा। जब आप पहुंचोगे, जब आप एक्सप्लोर करोगे, ये सारी चीजें मेनली आपको सबर्ब्स में मिलती हैं। और सबर्ब अच्छा जाने के लिए पहले तो कम्यूट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिकागो का मैं बता रही हूँ, ज्यादा मुझे पता नहीं, शिकागो का मुझे पता है। शिकागो में मैं रही थी, न्यूयॉर्क में गई थी, तो मुझे एक दो जगह का पता है। आपको कैंपस के आसपास जाने के लिए आपको बस मिलती है, तो आप बस से चल जाओगे, या वॉकेबल डिस्टेंस पे हो तो पैदल चल जाओगे। और बस का तो फ्री पास होगा, राइट? सो फॉर बस इट इज कॉल्ड CTA U पास, जो आपको अपने ट्यूशन फीस में भरना पड़ता है $160, विच इज फॉर योर सेमेस्टर, पर सेमेस्टर। और वो पास आपका वेकेशंस पे नहीं चलता। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, इस सब पे आपका वो पास नहीं चलेगा। तो आपको फिर अलग से कुछ लेना पड़ेगा या इंडिविजुअली देना पड़ेगा, विच इज अबाउट $2.5 to $5 ईच ट्रिप का, जो आपको भरना पड़ता है अलग से, अगर आपने 160 का पास नहीं लिया तो। तो वो पास से आप ट्रैवल कर सकते हो बसेस से आसपास की जगह। मोस्टली आपकी सिटी में सब जगह बस जाती है। और ये जो कुकर और ये सारी चीजें, देसी चीजें मिलती हैं, वो मिलती है आपको सबर्ब्स में। और सबर्ब्स आपके सिटी से बहुत दूर है। सारे कॉलेजेस जनरली सिटी में होते हैं, और सबर्ब जो है वहाँ जहाँ पे लोग सेटल हो चुके हैं या बहुत खाली स्पेस है, वहाँ वहाँ रहते हैं। वहाँ अच्छा। पे देयर आर मेनी स्टोर्स, इंडियन स्टोर्स, वेयर यू कैन बाय दीस स्टफ। बट सब मिलता है, यूएस में सब कुछ मिलता है। राइट। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के आसपास कौन सा इंडियन स्टोर है जो भी व्यूअर्स? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हम ऑनलाइन मंगवाना शुरू कर दिए थे। सो अच्छा, okay. इफ यू गो देयर एंड इफ यू हैव अ कॉस्को का पास, अगर आपके कोई भी फ्रेंड है वहां जो रहते हैं, आप अगर कॉस्को का पास ले लो, तो आप फिर ऑनलाइन सब कुछ मंगा सकते हो बल्क में, या फिर जाके शॉपिंग कर सकते हो। तो हम वो करते थे। और अच्छा। आसपास जो छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहां से जाके थोड़ा बहुत सामान ले आए। हम्म। बट फर्स्ट सेमेस्टर और मेनली 2 सेमेस्टर तक चावल दाल सब लेके गए थे हम, हाँ हाँ हाँ। सारे अब लोग। इतना इतना कुकर चावल दाल सब कुछ लेके गए हो, तो मुझे ये बताओ अल्टीमेटली मतलब कितने बैग्स लेकर गई थी तुम इंडिया से? 2 2 बैग्स में सब कुछ आ गया, कपड़े भी आ गए और एक बैग में खाने का सामान भी आ गया? कपड़े एक बैग में सिर्फ खाना, कुकर और ये सारी चीजें बस। अच्छा, ओके, ठीक है। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग। चलो, नाउ यू आर लिविंग आउटसाइड ऑफ कैंपस, आप रह रहे हो, एंड खर्चे काफी हो ही रहे हैं, ऑफ कोर्स। ट्यूशन फी भी काफी है, रहने का भी खर्चा काफी है। अर्निंग्स के बारे में बात करते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सिनेरियो है वहाँ पे? वर यू आल्सो डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब? ऑफ कोर्स यू टोल्ड अस कि TARA लग जाता है students को। उसके बारे में कुछ बताओ। देयर इज अ पोर्टल जिसको हैंडशेक बोलते हैं। हैंडशेक में आप जाने से पहले अप्लाई कर सकते हो, बट लोग करते नहीं है। दे डोंट वांट टू एक्सप्लोर अ लॉट बिफोर दे गो देयर। सम ऑफ देम दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, सो वो पहले से अप्लाई कर देते हैं, और जाते जाते उनके पास एक कुछ ना कुछ जॉब होता है। बेनिफिशियल क्या है, पहले से अप्लाई कर दो कि फिर वहां पे लैंड करो, फिर उसके बाद देखो, फिगर आउट करो? नहीं, इतनी जल्दी क्या है अप्लाई करने की, थोड़ा जाओ सेटल हो, क्योंकि कोर्स भी टफ है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर लोगे, इट्स नॉट दैट इजी।
फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। सो आई वुड से कि आप जाने के बाद अप्लाई करना शुरू करो। जानो कि आपने अप्लाई तो कर दिया आपने, अब आपको उसका जॉब रोल ठीक से पता नहीं है, इन पर्सन है कि ऑनलाइन करना है, कितने पैसे मिलेंगे एग्जैक्टली आपको कुछ पता नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप 6 महीने पढ़ाई पे फोकस करो, अब वहां जाके थोड़ा एनवायरनमेंट देखो, सेटल हो, उसके बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो। When तो did you start your with this part-time job? कब से start करा तो तुमने? आफ्टर 6 months आई गॉट अ जॉब एंड वी गॉट एन ईमेल What फ्रॉम was the द job about? Okay. टीए में। आपको एक जॉब होता है जिसमें आपको $12 to $13 मिलते हैं पर आवर, और एक टीए और जीए जो होता है असिस्टेंटशिप, जिसमें आपको ट्यूशन वेवर मिलता है एंड यू गेट अबाउट $23 to $24 पर आवर। Okay. Okay. So I guess because we have had a lot of conversation with students जो कि US जाके पढ़ रहे हैं, I guess हर यूनिवर्सिटी का TA and RA का जो ऑफरिंग्स है पैसे वाइज सब कुछ डिफरेंट है। अभी तक का $23-24 इन शिकागो इज अ हाई प्राइस, इट्स अ गुड प्राइस। आई हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बताया कि हमें बस $14 मिल रहे थे या $13 भी मिल रहे थे। सो ओके, दैट्स आल्सो वन थिंग इंटरेस्टिंग फॉर आवर व्यूअर्स कि देख लेना अर्निंग्स के हिसाब से भी मतलब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है अर्निंग्स आपकी कितनी होंगी। व्हाट आई थिंक इज पब्लिक यूनिवर्सिटीज थोड़ा ज्यादा देती है अपने टीए को, और 23.6 आई थिंक मेरा था। बट जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद बच्चे वहां पे स्ट्राइक पे चले गए थे कि उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं वहां के लोकलाइज, और फिर ये बढ़ा करके आई थिंक 26 कर दिया गया। आई थिंक सो, लाइक इट हैज इंक्रीज्ड आफ्टर द स्ट्राइक सिनेरियो। वहां पे 2-3 दिन के लिए स्ट्राइक किया था लोगों ने कि उनका सैलरी बढ़ाना चाहिए। इट हैज इंक्रीज्ड, नाउ इट्स मोर देन $23.6। अच्छा ठीक है, तो ये $23 के लिए कितने घंटे यू वर वर्किंग इन अ वीक? So legally, an international student can work for up to 20 hours a week हाँ with your course. And if it's a summer or a winter break, like जब आपने कोई credits नहीं लिया है, तब you can work up to 40 hours. अच्छा ओके तो ओके you get a summer break in between, जिसमें आप 40 hours एक महीने काम कर सकते हो क्योंकि आपने कोई भी credits नहीं लिया है। okay, interesting, cool. Now let's come back to your cost part. कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में तो देखो थोड़ी बहुत बात कर ली, कॉस्ट ऑफ ट्यूशन के बारे में बात करते हैं। कितना, व्हाट वाज द ट्यूशन फी फॉर यू? ओके, सो यूआईसी में एक स्लैब स्ट्रक्चर होता है जो ठीक है, आपने अगर 10 क्रेडिट्स लिया है तो आपका ये फीस है, आपने 10 के अबव लिया है तो आपका ये फीस है। तो इट्स बेस्ड ऑन योर क्रेडिट एंड इट्स अ स्लैब स्ट्रक्चर विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वंस व्हेन यू गो देयर। तो आप जब जाते हो तो आपके एकेडमिक काउंसलर या आपके जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, यू हैव टू सिट विद दैट पर्सन, यू विल हैव अ वन-ऑन-वन इंटरव्यू एंड आपको अपने पूरे 2 साल का, सो मेरा कोर्स 2 साल का था बट मैंने 1.5 में कंप्लीट किया जस्ट टू सेव सर्टेन अमाउंट एंड गेट द डिग्री एज सुन एज पॉसिबल। आपको उनके साथ बैठना है और आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से सेमेस्टर में कौन सा कोर्स ले रहे हो, कौन कौन से आपके मैंडेटरी कोर्स हैं और कौन कौन से आप ऑप्शनल कोर्स में से चूज कर रहे हो बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड। तो प्रोफेसर विल सी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और ये कोर्स करने के लिए आपके पास अगर ये बैकग्राउंड नहीं है तो आपको एक प्रीरेक कोर्स करना पड़ता है। अच्छा तो वो कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपका फी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मेरे टोटल 38 क्रेडिट्स थे इन दिस सप्लाई चेन कोर्स, जिसमें से 32 वर कंपल्सरी कोर्स, 32 क्रेडिट्स, और 6 कोर्सेज जो थे मेरे वो ऑप्शनल थे, मतलब 6 कोर्सेज जो थे वो प्रीरेक थे। आई हैड टू डू इट क्योंकि मोस्टली जो ग्लोबल से जाते हैं, यूआईसी ग्लोबल से, उनको ये 6 क्रेडिट्स का कोर्स करना है, विच इज 4 क्रेडिट एंड 2 क्रेडिट्स। अच्छा तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था 14 क्रेडिट्स। माई फीस वॉज अबाउट 19.5K, अबाउट $20,000। सेकेंड सेमेस्टर में फिर मैंने लिया था 14 क्रेडिट्स, फिर अगेन $20,000। थर्ड सेमेस्टर में मैंने लिया था 10 क्रेडिट, 10 क्रेडिट्स। माई फीस वॉज अबाउट $13,000 to $14,000। ठीक है ठीक है, सो दिस वाज इन द थर्ड सेमेस्टर राइट? यस, 2 साल का कोर्स था, फोर्थ सेमेस्टर। 2 साल का कोर्स था, मैंने 1.5 साल में खत्म कर लिया ज्यादा क्रेडिट्स लेकर के। राइट राइट राइट, तो ओवरऑल आप 38 क्रेडिट्स का कितना बना? यू पेड $20,000, अबाउट 40,000 एंड देन 13 आई गेस, सो $53,000 अबाउट $53,000 $53,000 मैंने 1.5 साल के लिए दिया। 1.5 साल के लिए $53,000 तुम्हारा ट्यूशन फी था। अब यार तुम्हारे प्रोग्राम के लिए इज देयर एनी स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है?
I think you get a lot of scholarship for the computer science course, MS and CS. But for this course, I don't think there are scholarships. But मुझे ऐसे $1,000 का मिला था scholarship, which was negligible if you compare it to $53,000. Right. So थोड़ा सा आप $1,000 दे दिया आपने स्टार्टिंग में, बस उतना ही था. और then you have this GATA, काफी लोगों को मिल जाता है ये इस कोर्स में. मैंने देखा है when you compare it to other courses, जैसे ऐसे ऑड कोर्सेज जो उतने फेमस नहीं है इंडिया में, जैसे अर्बन प्लानिंग. माय रूममेट वाज फ्रॉम अर्बन प्लानिंग, सो आई एम टॉकिंग मोर अबाउट दिस कोर्स. उसमें थोड़ा मिलना मुश्किल है आपको टीए. आपको ग्रेजुएट आवरली मिल जाएगा, बट आपको GATA मिलना मुश्किल है. बट सप्लाई चेन में आप सीन कि काफी लोगों को मिला था GATA के कोर्सेज और GATA के जॉब्स, और दे पे रियली गुड. बट काम भी बहुत करवाते हैं. आई शुड टेल यू कि अगर आपका जो मेरा प्रोफाइल था वो था कोर्स बिल्डर, तो आई हैड टू डू इट. इट वाज अ काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम जॉब. मेरे को 2-3 बार ही कैंपस जाना होता था जस्ट फॉर अ मीटिंग. सब मुझे ऑनलाइन करना था. सो आई हैड टू सिट विद द प्रोफेसर्स एंड मॉडिफाई सम ऑनलाइन MBA कोर्सेज जो UIC लॉन्च करने वाली थी नेक्स्ट ईयर. ओके. तो बहुत इंटरेस्टिंग जॉब था. सप्लाई चेन के कुछ कोर्सेज उसमें थे, तो आई वाज अवेयर ऑफ द टर्म्स, सो आई कुड हेल्प द प्रोफेसर थोड़े वीडियो एडिटिंग में, या ये प्लेटफॉर्म पे कुछ चेंजेस कर देते हैं, ये सारी चीजों में. बट मेरी जो एक और फ्रेंड थी उसको मिला था जॉब हॉस्पिटल में. UIC का कोई हेल्थ सेंटर है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली. इट वाज अ हॉस्पिटल. कोविड के ऑब्वियसली कोविड चल ही रहा था, मतलब माना गया था कि कोविड चल ही रहा है. तो पूरे टाइम मास्क पहनना है और आपको सारे डिपार्टमेंट में जाना है. हॉस्पिटल का जॉब था उसका. शी वाज डूइंग सप्लाई चेन ऑपरेशन. You have to go to, if you are not into that biology department या ऐसा कुछ, and you don't want to do this just for the sake of earning, आपको करना पड़ता है. और पूरे दिन, पूरे 20 hours a week आपको करना पड़ता है. Right. It is difficult. Of course, that is difficult, and that was also scary for I'm sure for your friend and फिर उसके बाद तुम लोगों के लिए भी, because you guys were staying in a same place. ठीक है, all right. So now talking about, because you have mentioned a lot of things about faculty, right? I want to ask some more questions about your faculty. Faculty कौन थी तुम्हारी? उनका background क्या था? And कैसी faculty थी overall? If let's say out of 10 you want to rate the overall faculty of your program, how much are you going to give them? To be honest, my faculties were really good. I will give them 9 out of 10. Now give me reasons कि 9 and वो एक missing क्यों है? Okay, ये missing इसलिए है क्योंकि कॉलेज ने बोला था सेकेंड सेमेस्टर से आप you have a choice कि आप in person भी क्लास ले लो या आप ऑनलाइन क्लास भी ले लो. Now if you are going to US and spending a lot, you will definitely want to go to class, right? कैंपस लाइफ देखनी है आपको, लोगों से इंटरेक्ट करना है. एंड मास्टर्स इज ऑल अबाउट केस स्टडीज. तो केस स्टडीज, अब बीच में आपका इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया, आपका लैपटॉप का बैटरी चला गया, पीछे से किसी ने आवाज कर दिया, ये सारी चीजें आप, मतलब एक 3 घंटे की क्लास होती थी, वो भी शाम में. माई क्लास यूज्ड टू बी फ्रॉम 5:30 to 8:30 ऐसे. अच्छा. शाम में पूरे दिन आप घर पे रहे हो, आपने बहुत सारा खाना खाया है, बाहर एकदम ठंड है, स्नो हो रहा है, आप कहीं गए नहीं हो. रात में आपको कैसे मन करेगा कि आप 3 घंटा इतना फोकस होकर के ऑनलाइन लैपटॉप के सामने पढ़ो. तो कुछ प्रोफेसर्स दे चोज टू टीच ऑनलाइन, जबकि ऑप्शन था इन पर्सन का फॉर सम ऑफ द कोर्सेज. तो फॉर दैट आई थिंक आई विल डिडक्ट 1 mark फॉर दैट. Okay. And what were the good things about these faculty? The good thing is कि मेरे क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो काफी एजेड थे. They had a work experience of about 15 years, 18 years, काफी एजेड लोग. और प्रोफेसर्स ऑफ कोर्स उतने एजेड नहीं होते, यंग थे. मतलब आई एम टेकिंग दिस सिनेरियो एंड टेलिंग यू, प्रोफेसर एकदम यंग है और काफी एजेड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं. प्रोफेसर्स जो है वो क्लासेस को इंटरैक्टिव रखते थे इतना ज्यादा कि आपको वो 3 घंटे की क्लास में नींद नहीं आएगी. इतना इंटरैक्टिव है, इतना लाइव एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, इतना केस स्टडीज देते थे. दैट वाज रियली गुड. एंड लेट मी टेल यू, ऑल दोस प्रोफेसर्स वर इंडियन. आई थिंक बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ मनी. इंडियन स्टूडेंट्स, दे आर पेइंग, दे आर टेकिंग लोन्स एंड दे आर पेइंग एन अ ह्यूज अमाउंट. तो वो पढ़ाते भी इतने अच्छे से हैं कि आप कुछ बन जाओ. That's what I think. If you compare it, I'm not. So all your faculty members were Indian? सारे प्रोफेसर्स थे? But I think 3 of them. अच्छा. So एक ही प्रोफेसर बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं अलग अलग सेमेस्टर में.
तो देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स. एक प्रोफेसर 3 कोर्स पढ़ा रहे हैं एक एक सेमेस्टर में. अच्छा. ओके. तो ओके. आई थिंक 3 वर इंडियन एंड देन That's रेस्ट 2 very वर अमेरिकन. that's very interesting. I also want to know कि तुम्हारा जो बैच था उसमें टोटल बैच स्ट्रेंथ कितना था एंड हाउ वाज द बैच की डाइवर्सिटी कैसी? हर कोर्स में अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं और हर कोर्स का स्ट्रेंथ भी अलग अलग है. जैसे साइबर सिक्योरिटी एक कोर्स है, तो वो सारे इंडियंस ने ले लिया है. अच्छा. नॉट okay. बिकॉज कि वो सप्लाई चेन का कोर्स है, वो सीएस का कोर्स है, ऐसा नहीं. क्योंकि वो कोर्स 2 क्रेडिट का है. और अच्छा. जैसे मैंने बताया कि यूआईसी में स्लैब स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर. आप अगर एक क्रेडिट एक्स्ट्रा आपने ले लिया तो ऑलमोस्ट यू हैव टू पे $5,000 एक्स्ट्रा. $5,000. तो Okay. जस्ट टू सेव दैट अमाउंट बहुत लोग साइबर सिक्योरिटी कोर्स ले लेते थे कि 2 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट का कोर्स नहीं लेना पड़ेगा. उस कोर्स में सारे इंडियंस आपको दिखेंगे, Okay. बहुत कम आपको अमेरिकन दिखेंगे. जो कोर कोर्सेज हैं जैसे ऑपरेशंस मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वहां पे आपको अमेरिकन और बाकी कंट्री के लोग काफी ज्यादा दिखेंगे. तो वहां पे आई वुड से इट्स फिर भी इंडियन ज्यादा है. आई वुड से इट्स 70-30. 70% आर इंडियन एंड 30% आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. All right. So, now talking about the overall profile of your batch, ठीक है. तुम्हारे बैच में you scored 292 in GRE, right? तुम्हारे बैच में जो बाकी लोग थे क्या उन्होंने भी ऐसे similar scores करे थे या what was the minimum या what was the maximum GRE score जो तुम्हें पता होगा maybe तुम्हारे बैच में? Honestly, no one shares this और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता एक बार चले गए तो. बट आई थिंक 300 के ऊपर बहुत लोगों को आया था. मेरे जितने लोगों से मैंने पूछा 300 के ऊपर आया था. सो आई थिंक आई वाज वन ऑफ द लकी फ्रॉम दैट बैच जिसका हो गया था एडमिट. राइट. ऑल्सो यू शेयर्ड कि काफी लोगों का वर्क एक्सपीरियंस वगैरह काफी ज्यादा था. यस. तुम्हारा ऑफ कोर्स उतना 15 साल का नहीं होगा वर्क एक्सपीरियंस. तो बट इंडियन स्टूडेंट्स का आई थिंक अगर आपको सप्लाई चेन कोर्स में जाना है तो वर्क एक्सपीरियंस लेके जाना बेटर है. और जितने लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया सबका 2-3 साल वर्क एक्सपीरियंस था मैक्सिमम लोगों का. इंडियंस का, टॉकिंग अबाउट ओनली इंडियंस, 2-3 साल का एक्सपीरियंस था. कुछ ही लोग थे जो फ्रेशर थे सप्लाई चेन बैच में. ओके. ऑलराइट. नाउ अपराजित, चलो अब बात करते हैं थोड़ा जॉब्स के बारे में एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में. what are you doing now after completing your whole program? What did you do eventually? So I planned to stay there in the US, but due to some issues I had to come back. But last semester में मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था डेडिकेटेडली. एंड देन यू डोंट नो हाउ टू डू इट क्योंकि जैसे इंडिया में Naukri.com और ये सारे हैं, Indeed, वहां पर हमें कुछ पता भी नहीं. मुझे तो पता भी नहीं, शायद नहीं है कुछ भी. सो LinkedIn इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म यूएस में जहाँ से आप सबसे ज्यादा जॉब्स मिलते हैं लोगों को. सेकेंड इज जो आपके फेस्ट होते हैं कॉलेज फेस्ट में, जो आपके करियर फेयर्स होते हैं या फिर बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें आप अगर रजिस्टर करो तो आपको काफी कॉन्टैक्ट्स मिल जाता है. तुम्हारे यूनिवर्सिटी में करियर फेयर्स वगैरह होते थे? यस, करियर फेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं यूआईसी में. आई थिंक जब फाइनल सेमेस्टर में तो एवरी वीक यू विल हैव समथिंग और द अदर गोइंग ऑन. कि ये कोई वॉलमार्ट आ रहा है, उसके कुछ 2 लोग हैं, एचआर हैं, आपको अगर रजिस्टर करना तो आप कर दो. फिर आपका ये कुछ एक कॉन्फ्रेंस है जस्ट कि बताने के लिए कि कौन सा जॉब्स उनके पास ओपन है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये भी है. बट आई हैव नॉट हर्ड कि किसी को करियर फेयर से, सप्लाई चेन के बारे में बता रही हूँ मैं, करियर फेयर से किसी को जॉब मिला. आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट. Amazon आता है, वॉलमार्ट आता है, DoorDash, देयर आर मेनी कंपनीज विच कम. बट सप्लाई चेन वाले लोगों को उतना फायदा नहीं है. फायदा ये है कि आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा एचआर का, आपको पता चल जाएगा कि कौन से ओपनिंग्स हैं और आपको पता चल जाएगा कि कंपटीशन क्या है. दे विल टेल यू कि हमारे पास 100 एप्लीकेशन है ऑलरेडी इसका. दे विल नो दैट. अच्छा. जॉब आपको ऐसे मिलेगी कि आपको बनाना है एक एक्सेल शीट. पहले एक्सेल शीट में आपको सारे कंपनीज का नाम लिखना है जो सप्लाई चेन के जॉब्स देते हैं. And every day you have to sit for at least 2 to 3 hours. The first thing you do in the morning is apply for those companies. I think मैंने 100 से ज्यादा कंपनीज में within 2 months अप्लाई किया होगा. उससे मुझे 3 से 4 इंटरव्यूज का कॉल आया था, सिर्फ 3 से 4 आउट ऑफ 100. एंड द वर्स्ट थिंग इज कि आपको रिजेक्ट का ईमेल भी नहीं आता है. लाइक व्हेन आई केम बैक टू इंडिया आफ्टर 1 year, तब मुझे रिजेक्ट का ईमेल आ रहा था कि आई एम नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब. आई अप्लाइड 1 साल पहले. तो आई गेव इंटरव्यूज फॉर 2 कंपनीज व्हिच वाज, वन वाज जॉनसन एंड जॉनसन. उसके फाइनल राउंड तक मैं गई थी बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट थ्रू द फाइनल राउंड. क्या प्रोफाइल थी जॉनसन एंड जॉनसन?
It was related to supply chain, some warehouse related job थी जितना मुझे याद है. कुछ अच्छा रोल था जिसमें आपको warehouse में रहना था. It was in a different state. So Johnson and Johnson में पहले आपको वीडियो बनाना पड़ता है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देके. They will have 3 questions, you have to answer that. फिर सेकेंड राउंड में आपको कुछ एक टेस्ट देना होता है which test your skills and your personality. तो ऐसे 3-4 स्टेप्स हैं उसके. देन यू गेट द इंटरव्यू. इंटरव्यू भी फाइनल राउंड का 3 इंटरव्यू होता है उसमें. अच्छा, ओके ओके. So एंड to- ये जॉनसन एंड जॉनसन कितना ऑफर कितना कर रहे थे, पैकेज कितना ऑफर कर रहे थे? I don't know. If you are not selected, they won't tell you. But I would tell you कि $80,000 to $100,000 होता है सबके लिए. But it starts from, जैसे मुझे पता चला मेरे दोस्तों का जो जॉब लगा, क्योंकि मैं तो वापस आ गई थी, बट दोस्तों को जो पैकेज लगा, it starts from $60,000 and it Okay. goes to $100,000. Amazon I think $100,000 तक देती है सप्लाई चेन वालों को. CS का बहुत ज्यादा होता है. You can't compare this business course from a proper engineering course. All right, all right. So Aprajita, now you're back in India and you're doing Yeah. you're doing a great job. And yes, I think this has been it. I'm done with my questions. This was a very interesting conversation with you, and heard a lot of stories. I'm sure viewers को भी काफी कुछ पता लगा होगा study abroad की journey के बारे में और University of Illinois के बारे में भी. So if you like this video, viewers, don't forget to hit on the like button. And let's say if you want to talk to Aprajita, तो हम उसका LinkedIn URL अपने description में mention कर देंगे. You can just go ahead, talk to her, take some guidance as well. I'm sure Aprajita would be able to entertain you all. And yes, Aprajita, thank you so much for giving your time. However, do you want to add a final advice to our viewers? Anything that you want to say? Yeah, one last advice. If you're in India, have a last name, please. You can't go with the first name to the US. It's really hectic. आप पढ़ाई छोड़ के इस पे लगे रहोगे. Of course. ठीक है. Point noted, Aprajita. ठीक है. Thank you so much, Aprajita. Thank you for this conversation. Thank you for your time. Thank you, Swapnil. So that was the whole conversation with Aprajita. I am very sure आप लोगों को काफी interesting stories सुनने को मिली. And yes, if you like this video, don't forget to hit the like button, subscribe to our channel, hit that bell icon. Keep following us and we'll see you in the next video. Till then, this is Swapnil signing off. Bye bye.